हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है क्लास माइक्रोब्स क्लास है। जैसा कि क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी तक हमने एक्सरसाइज जो है 4.3 तक डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो फर्स्ट वी understand that the point which is present only the x axis, the what is the coordinate of that point and how to represent on the Cartesian plane। तो हमारा यहाँ पे आज का मोटो क्या, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई पॉइंट सिर्फ x एक्सेस पे है तो उसे हम कैसे, उसका पॉइंट्स क्या होगा, या y एक्सेस पे तो उसका पॉइंट क्या होगा। फर्स्ट थिंग ये हमें समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन फ्रॉम x एक्सेस एंड y एक्सेस। x एक्सेस और y एक्सेस के पैरेलल लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पॉइंट्स को समझने के लिए पहले एक कार्टेशियन प्लेन खींच लेते हैं। ये हमने कहा कि यह एक कार्टेशियन प्लेन है, ये इसका सेंटर होगा 0, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये y एंड y डैश होगा। हमने कहा ये 0 है, हमने कहा ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, जस्ट लाइक 1, 2 एंड 3। ओके, तो लेट्स वी ऑपरेशन दैट कार्टेशियन प्लेन। इफ वी सेज दैट कि व्हाट, अगर हम ये यहाँ पे कहे, इस ऑपरेशन में हम जो है आपसे ये कहे कि आप एक्स एक्सेस के पॉइंट्स को हमें बताइए। जैसे हमने कहा कि ये पॉइंट, तो इस एक पॉइंट का क्या होगा आपका, इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, 1, 0, just like this is a 2, 0, this is a 3, 0 and this is a 4, 0. Same as here we are says that 0, 1, 0, 2 and 0, 3। अगर हम x एक्सेस की बात करें तो x एक्सेस पे आपको क्या दिख रहा है, x, 0, यहाँ पे भी आपका x, 0, x, 0 and x, 0 means the point which have a coordinate like x, 0 is always situated and present on the x axis। We have said that कि if a point which have a coordinate x, 0 is always present on a point on a axis x, same as a point which have a coordinate 0, y। For example यहाँ पे देखिए 0, 1 means 0 y, 0 y and 0 y। The point which have a coordinate 0, y is always situated on the y axis, on the y axis। Here remember that the point which is always, the point which is always present on the x axis, the coordinate is only the x points and the y is always 0 means x, 0 and the point which is lie on a y axis is always have a coordinate 0, y means x is always 0। So this is the point, this is a 2 point which is remember during a study कि the point which is always present on the x axis have a coordinate 0, x, 0 and the point which is lie on a y axis is always a coordinate 0, y। So we try to study that how to draw the parallel line from to the x axis and the y axis। So let we consider a equation, let us x minus 2 equal to 0। This is a simple equation but in अगर हम इसे देखें तो this is a one variable equation but we consider as a two variable equation। तो if we consider a two variable equation, just you write 1 point x और 0 point y
minus 2 equal to 0. This is just like a standard equation, ax plus by minus plus c equal to 0. So x is 1 and b is 0. Here if we says that, if I says that the solution of this equation, for example x equal to 2, so the solution is 2 comma 0, 2 comma 1, 2 comma 2, means we says that 2 comma r. Here r is the variable, r is not for not only for 0, r is 1 2 3 4 5 6 7 8 elsewhere, but r the पोजीशन या द आर जो है ये किस पे होगा, ये हमारा y एक्सेस पे होगा. तो लेट अस ड्रा द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, ये हमने कहा ये ग्राफ है एक, जो इस ग्राफ को आप, इस ग्राफ पे आप लाइन खींचोगे. मैंने कहा दिस इज अ 0, this is 1, this is 2, this is a 3, and let's 1 y axis पे 2 and 3 and 4. तो यहाँ पे क्या पॉइंट आपका 2 comma 0, this is a point, 2 comma 0. okay, just this is a point, 2 comma 1, just this is a point, 2 comma 2, this is a point, 2 comma 3. If I draw the graph, then you got this. This is a graph for x minus 2 equal to 0, and you see that carefully कि this line is parallel to the y-axis. Means the graph x minus y equal to 0 is a parallel to the y-axis, y and y that. Here remember that point, and concentrate on that, on the point that कि x is a constant, x is 2, but y is changes, y is 0 1 2 and 3, y is changes. Same as if I says you draw a graph parallel to the x axis. So what is the x axis? X axis is that, let's consider here is not x, we are consider that कि y minus 2 equal to 0, तो y equal to 2, तो the solution क्या होगा 0 comma 2 1 comma 2 2 comma 2 3 comma 2. Here is also see, here x is a constant, here y is a constant, but x is variable. For example, first point 0 comma 2, this is the second point 1 comma 2, this is the third 2 comma 2, this is the fourth point 3 comma 2. If I draw the graph, this graph y minus 2 equal to 0, this graph a and b is parallel to the x axis, and we are also naming the first graph, this is a c and d parallel to the y axis. So here we where we remember a point that during the drawing, during to draw the graph parallel to the x axis, that one point is always constant and another point is always variable. If we draw the
parallel graph to the x-axis, then always x is variable and y is constant. And if I draw the graph parallel to the y-axis, then x is always constant but y is variable. यहां तक हमें क्या समझ में आया? हमें तक यही समझ में आया कि अगर हमें कोई ग्राफ खींचना है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए, तो एक्स एक्सेस के पैरेलल अगर हमें कोई ग्राफ खींचना है तो हमें क्या पॉइंट रखना है कि एक्स एक्सेस के एक्स पॉइंट को हम बदलेंगे पर वाई को हमेशा हम क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे. पर अगर हम कहें कि वाई एक्सेस के पैरेलल में अगर मुझे कोई ग्राफ खींचना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स एक्सेस को कांस्टेंट रखेंगे पर वाई एक्सेस को हम बदल रहे हैं. फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 वाई एक्सेस पे, पर एक्स एक्सेस पे ऑलवेज ट्रू. सेम एज अगर हम एक्स एक्सेस के पैरेलल वाई एक्सेस पे खींच रहे थे तो क्या था हमारा? वाई एक्सेस ऑलवेज 2 बट एक्स एक्सेस इज 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है स्टडी करते समय, पढ़ते समय. बहुत ही छोटा कंसेप्ट था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस. इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है इक्वेशन ये. आपका क्या है कि 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3. हम क्या करेंगे? x को एक तरफ ले आएंगे, वन साइड डू द x 2x माइनस x इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 1. ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस का 4. ओके, ये तो इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया. आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको बताना था, आपको क्या बताना है कि ड्रॉ रिप्रेजेंट द सोल्यूशन. सोल्यूशन आपका क्या आ गया? x इक्वल टू माइनस का 4. रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे तो बहुत आसान है. दूसरा कोटेशन प्लेन. फॉर द कोटेशन प्लेन वी आर समथिंग मॉडिफाई. फॉर एग्जांपल मैंने कहा x माइनस, यहाँ पे क्या लिखे हम? x माइनस 0 y इक्वल टू माइनस का 4 या 1 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू वाई इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0. सोल्यूशन क्या होगा आपका? SOLUCN. सोल्यूशन ऑफ फॉर दिस इक्वेशन या ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा आपका? x तो आपका माइनस 4, y क्या है? फर्स्ट एग्जांपल में y आपका 0 है. दूसरा क्या हो सकता है आपका सोल्यूशन? माइनस का 4 1. तीसरा क्या हो सकता है? माइनस का 4 2. चौथा क्या हो सकता है? माइनस का 4 3. माइनस का 4 माइनस का 1. आप y को कुछ भी रख दो बिकॉज y इज ऑलवेज 0 इन दिस केस. अगर आप y कुछ भी रख देते हो, y आपका 0 ही आ रहा, तो आप 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, एवरीथिंग. यहाँ पे आप y की जगह कुछ भी लिख सकते हो. मीन्स द माइनस का 4 कॉमा माइनस का 4 और r हो सकता है. अगर हमें यहाँ पे ग्राफ खींचना है तो हम ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचते हैं. एक लाइन सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आपका नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है. तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ग्राफ, एक नंबर लाइन खींचते हैं. ये आपका है, ठीक. इसको मैंने कहा ये आपका माइनस 4 रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम कहते हैं 0. ये हो जाएगा आपका माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4. आपको माइनस 4 ही रिप्रेजेंट करना है. आप ये पॉइंट्स यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो. ये पॉइंट आपका होगा x माइनस का 4, ठीक. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है. यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. बट नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है कोटेशन प्लेन पे. तो कोटेशन प्लेन के लिए हम एक कोटेशन प्लेन खींचते हैं. मैंने कहा दिस इज 0, ये आपका 0 है. ये हो जाएगा 1 माइनस का, हो जाएगा 1. ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4. आपको क्या रिप्रेजेंट करना है इस पे? आपको माइनस का 4,0 मीन्स दिस इज अ पॉइंट. ये 0 था आपका, ये 0 है. हमने कहा दिस इज अ 1, दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 3. ये आपका 1 है, यहाँ पे आ जाएगा.
ये आपका 0 2 यहाँ पे आएगा, ये आपका 0 3 यहाँ पे आएगा, मीन्स ये आएगा आपका, ये आपका क्या आया माइनस का 4 कॉमा 0, ये आपका आया माइनस का 4 कॉमा 1, ये आपका आया माइनस का 4 कॉमा 2, ये आपका आया माइनस का 4 कॉमा 3। जस्ट नीचे भी अगर हम कहेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 4 माइनस का 1, और अगर नीचे जाएंगे तो आएगा आपका माइनस का 4 माइनस का 2। अगर आप इस लाइन को मिला देते हैं या इस लाइन पे एक आप लाइन खींचते हो सिंपल सा, तो ये ग्राफ जो होगा ये भी ग्राफ आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 को। 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3, या इसका आपने सॉल्व क्या निकाला है x इक्वल टू माइनस 4। पूरी लाइन पे देखिए आपका x जो है माइनस 4 ही दिखेगा। तो दिस इज अ solution of example number 9. We are next move from the exercise 4.4 and today we will finish this topic. So the fourth question, and the question number 1 is so easy. Give the geometric representation of y equal to 3 as the equation in one variable and equation is two variable. तो let's first we are draw a graph, मतलब लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल के लिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, तो वन वेरिएबल के लिए तो क्या टेंशन है आपको, कोई टेंशन ही नहीं है। आप एक नॉर्मल सा ग्राफ खींचिए। ये आपका यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज़ अ 0 और आपको कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 3 एक ये आपने कहा 0, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 प्लस का है सब, ठीक। ये आपका 0 था, हमने कहा ये आपका -1 -2 -3, ठीक। हमने कहा कि आपको y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करना है, तो y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करना है। y इक्वल टू 3 मीन्स दिस पॉइंट इज y इक्वल टू 3 मीन्स क्या होगा आपका 3,0। दिस इज द पॉइंट एंड या सेज दैट इट इज अ y इक्वल टू 3। तो ये तो बहुत ही आसान था। दूसरा आपको इसे इन द टू वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करना है, तो टू वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, टू वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम कहें कि y इक्वल टू 3 है, तो हमें इसको क्या ऐसे लिखना है 0 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 इंटू वाई इक्वल टू 3। तो इसका क्या है आपका 0,3 एक सोल्यूशन होगा। सेकेंड सोल्यूशन आपका 1,3 होगा। थर्ड सोल्यूशन 2,3 होगा। फोर्थ सोल्यूशन क्या होगा 3,3। मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं r होता r कुछ भी आप कह सकते हो, मतलब r, x कह सकते हो, जो कि x इक्वल टू आपका 3 है। इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं, इसके लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए हम इसको नीचे थोड़ा करते हैं। ये हमने कहा ये 0 है, वन 2 3, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आपका y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 मीन्स ये आपका क्या होगा 0,3। दूसरा आपको क्या पॉइंट चाहिए 1,3, 1,3। दूसरा पॉइंट आपको चाहिए 2,3। तीसरा पॉइंट आपको चाहिए 3,3। चौथा पॉइंट आपको चाहिए 4,3। आप जो है एक इसको अगर आप मिलाते हो तो ये इक्वेशन किसका है आपका y इक्वल टू 3 का। तो बहुत ही इजी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ही इजी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी कार्टेशियन प्लान पे। आप किसी भी इक्वेशन को बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। यहाँ पे आप देख रही है, आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको
हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे सारे वीडियो हमारे टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, करा गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, 2x 9 इक्वल टू 0 एंड द 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। बहुत ही आसान है यहाँ पे। अगर हमें कहेंगे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर हम 1 वेरिएबल की बात करें तो 2x इक्वल टू माइनस का 9, तो x इक्वल टू हम क्या कहेंगे माइनस का 9/2 या माइनस का 4.5। ये हो गया 1 वेरिएबल के लिए, हमने कहा 1 वेरिएबल। अगर हम कहें 2 वेरिएबल के लिए तो 2 वेरिएबल के लिए इसमें आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे 2x प्लस 0y इक्वल प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब आप 2x प्लस 0y इक्वल टू माइनस का 9। तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस, आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो क्या होगा माइनस का 9/2 कॉमा 0 माइनस का 9/2 कॉमा 1 माइनस का 9/2 कॉमा 2 माइनस का 9/2 कॉमा 3। आप कुछ भी यहाँ पे कर दो। आपको क्या चाहिए, आपको लीनियर इक्वेशन एक पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ यहाँ पे खींचते हैं। यहाँ पे ना ये हमने यह कहा, ये दिस इज -0, दिस इज -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक, ये आपने दिखा दिया -5। ये आपका -4 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका आएगा माइनस का 9/2 या माइनस का 4.5। ये आपका 1 वेरिएबल पे हो गया, जो कि आपका x था। तो ये किसका है ग्राफ, एक किसका, कौन सा पॉइंट दिखा रहा, x इक्वल टू माइनस का 9/2। आप इसे कोटेशन प्लेन या 2 वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, देखते हैं हम। ये पॉइंट आपका 0 होगा, ये पॉइंट आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये पॉइंट जो है आपका आएगा माइनस का 4.5, या ये पॉइंट जो है आपका क्या आएगा माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 या माइनस का 9/2। ठीक, ये हमने कहा 1 होगा, हमने कहा 2, ये हमने कहा 3। इसी तरह आप इधर के ये -1, -2, -3। आप देखिए आपको रिप्रेजेंट करना है तो 0,1 हो गया ये। अब इसी के जस्ट अपर साइड में यह आएगा माइनस का 9/2, 1 और ऊपर अगर आप जाते हो तो माइनस का 9/2, 2 माइनस का 9/2, 3। आप इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 9/2, -3। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ये जो ग्राफ आपका ब्लैक वाला आया, ये ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 को। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपका y एक्सेस के पैरेलल है। ये आपका y है, ये आपका y डैश है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड नथिंग, सिर्फ समरी है इस पूरे चैप्टर का। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अगर आप इस समरी को स्टडी करते हैं, समरी को देखते हैं, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पहला लाइन क्या बोल रहा है कि कोई भी इक्वेशन जो है, अगर हम लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि ax प्लस by इक्वल टू
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे ए बी सी एक रियल नंबर होना चाहिए और ए और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी कभी भी 0 नहीं है और ए बी सी इज अ रियल नंबर एंड आर अ रियल नंबर, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। सेकेंड क्या करता है कि अ लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, उसकी सोल्यूशन इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप जब ग्राफ खींच रहे थे कार्टेशियन प्लेन पे, तो उस प्लेन पे मिलने वाले सारे पॉइंट्स उस ग्राफ पे अगर हैं तो वो उसके सोल्यूशन हो रहे थे। तीसरा आपने देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, कभी भी कर्व नहीं आ रहा था, हमेशा आप स्ट्रेट लाइन ही खींच रहे थे। अगर x आपका 0 है तो वो पॉइंट या इक्वेशन ऑफ द y एक्सेस का है, अगर y आपका 0 है तो वो इक्वेशन आपका x एक्सेस का है। अगर आपका x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू a है, x कांस्टेंट है और y अगर वेरिएबल है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू दी y एक्सेस। अगर आपका y कांस्टेंट है और x 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा x एक्सेस की। अगर आप y इक्वल टू एम एक्स की बात करते हो तो y इक्वल टू एम एक्स अगर आपका कोई है इक्वेशन तो वो हमेशा 0 से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। जितने भी पॉइंट आपको ग्राफ पे मिलता है टू वेरिएबल का वो सारे उस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, या एक कह सकते हो कि जितने भी सोल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के वो सारे उस ग्राफ पे मिलते ही मिलते हैं। अगर नहीं मिलते तो वो उस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होते। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपने दोस्त का ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हमने लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और लाइंस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जो कि एनसीईआरटी का अगला चैप्टर 5 होगा। अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए, देखिए और अपने कंसेप्ट को विद माइक्रोस क्लास के साथ मजबूत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।